ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਹੀਮ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜੇ ਰੋਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿੰਦ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰੀਮੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਨੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ। ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ। ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਨ ਪਰੇ ਫੈਂਕਦਾ, ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਔਖਿਆਈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਕਨ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਪਰੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਚਿੰਤਾ, ਗਮ, ਸੋਗ, ਫਿਕਰ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਜਰਾ ਇਹਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ 10 ਅੰਗੂਠੀਆਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਿਲਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਆ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਭਾਜੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਨਾਮ ਜਪ, ਆਪ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲੰਕ ਨਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰਤੀ।
सारे लोग फिर सौ सुहागण तो माफी मंगण लग पे। फिर वो सोहने कपड़े पा के फिर बैठ गया, पर हुण किवें बैठा? नामदान दे समेत। महाराज ने नामदान बख्शदा, कहंदे आप रब दा नाम लिया कर, लोकां नूं जपाया कर। समस्तुल निवास है, तेरा निवास हर जगह दे उत्ते है। समस्तुल भाव सारे। अगंजुल गनीम है, सो जिन्ने भी दुश्मन ने इन्हां नूं कट्टण वाला है। दुश्मन नूं तां झट ही खत्म करदा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं भी खत्म कर दिंदा है। रज़ाइक रहीम है, रहीम रहम करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ रोजी रोटी दे जांदा है। बड़ा धन्नवाद है तेरा। करदे कराउंदे असीं सारा दिन च कुछ नहीं, सारा दिन गल्लां गप्पां टीवी अखबार इधरलियां उधरलियां झूठियां पतलियां करके हेरा फेरियां ठगियां ठोरियां रिश्वतां खोरियां, पर फिर भी रोटी देई जांदा सानूं। माड़े आ चंगे तेरे ही सच्चे पातशाह, फिर भी सानूं रोटी दिंदा। इसे गल्लों थैंक यू करो, धन्नवाद करो वाहिगुरू दा। महाराज कहते मैनू इउं ना कहो तेरा धन्नवाद, मैनू तां इन्ना ही कही जाओ वाहिगुरू वाहिगुरू। करते ने 154 पौड़ियां श्रवण कीतियां ने। अगे वचन करते ने समस्तुल जुबान है, ये सारियां जिन्नियां जुबानां लगियां हुई जीवां नूं, ये सारियां जुबानां विच तू आप है। जुबान रूप है, बोली तेरी अपनी हुई है, आप ही बैठ के बोल रहा है कि साहिब किरां है। किरां कहने ऐश्वर्य नूं, कि ऐश्वर्य दा मालक है तू, हर प्रकार दे ऐश्वर्य देण वाला है। कि नरकं प्रनाश है, कि नरकां नूं नाश करन वाला है। बेहिस्तुल निवास है, तेरा निवास हमेशा बेहिश्तां विच रहिंदा है। नरकां नूं नाश करदा है, बेहिश्तां विच निवास करदा है। सचखंड वसै निरंकार। कि सरबुल गवन है, कि सारियां थावां दे उत्ते गवन पहुंचण वाला है। गवन करना, हरेक जगह दे उत्ते जाना। हमेशुल रबन है, हमेशा ही सारियां विच बैठ के रस्सिया बन के रबना है हरेक चीज नूं। जोगी अंदर जोगिया, उत्थे जोगी बनया बैठा समाधि ला के। भोगी अंदर भोगिया, हरेक तरह का रोल कर लैंदा। वो जिहा जिहा रोल करना उह जिहा बन के उह जिहा ही रोल करना। हरनाक्ष बन जाता, जले हरी थले हरी जगह जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष कहण लग पैंदा। फिर महाराज कहने आप ही मारन वास्ते नरसिंह रूप धारण कर लैंदे हो। तमामुल तमीज है, तमाम जीवां दी तमीज पहचान रखण वाला है, हरेक नूं पहचानदा। बनाए जो उन्होंने कहते घरदियां दे जम्मियां दे दंद गिणन दी लोड़ नहीं हुंदी। रब ने ही तां आपां नूं बनाया सारियां नूं, ते रब नूं ही अपना पता नहीं, उहनूं सब दा पता है, हरेक बंदे दा पता है। बस इक्को ही गल है कि जिहड़ा उहनूं प्यार करे, वाहिगुरू उहनूं बहुता प्यार करदे ने। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ रब है ही नहीं, परमात्मा किहड़ा देखदा है। महाराज कहने तथास्तु, तेरी भावना मुताबक तेनों दिखांगे नहीं, तेरे च भावना ही नहीं है। भावना वालियां दे कोल खड़ जांदे ने, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा। समस्तुल अजीज है, सारियां नूं प्यार करदा है, सारियां दा प्यारा है। प्यार सब नूं करदा है। मेरे बनाए हुए जीव ने ये, पर जे वो तो एक अंगी प्रमाण हो गया ना। मच्छी है, मच्छी नूं पानी चों बाहर सुट दो, मच्छी तड़फ तड़फ के मरदी है, पानी नूं कोई असर नहीं है। दो अंगी प्रीति दुध ते पानी दी है। दुध जे उबलदा है तो पानी पा दईए ठंडा हो जाता है, तो फिर उबलदा है। दुध तां उबलदा मैं उबल के अग बुझा दियां कि मेरा प्यारा पानी सड़ रहा है। ये दोनों की आपसी प्रीति है। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं मैं तो सारी दुनिया नूं ही प्यार करदा, मेरी किसी नाल नफरत नहीं है। पर गल है भी तुसीं भी तो प्यार करो। कहते जिन्ना प्यार करदा मैं तुहानूं जिन्नियां गिफ्टां दिन्ना, किन्नी गिफ्ट रोज मिलते आपां नूं। ऑक्सीजन ही बड़ी वड्डी गिफ्ट है। हस्पताल ऑक्सीजन लगे तो पैसे लैंदे उत्थे, वाहिगुरू इन्नी ऑक्सीजन दिंदे किते पैसा नहीं मंगते। पानी, अग, आकाश, चंद्रमा, तारे
सूरज का प्रकाश है, कोई बिजली का बिल नहीं आता सूरज का। महाराज कहने मैं तो इन्नियां चीज़ां फ्री दिना, जे किते मैं अपना बिल भेजन लग जा हरेक चीज़ का, बंदा जिउंदा ही ना रहे, इन्ना बड़ा बिल इक्को दिन का ही आ जाना अपना। इस करके सतगुरु कहते मैं तुहानूं प्यार नाल तोहफे दिना, खाण पीण नूं फल फ्रूट दिना, रोटी पानी दिना, हरेक चीज़ बख्शिश करदा। परम ईस है, परे तो परे वड्डे तो वड्डा ईश्वर है, सारियां तो वड्डा है। समस्तुल अधीश है, समस्तुल सारियां दा आद ईश है, सारियां दा आद ईश्वर तू ही है। कहण नूं तां सारे आपां पुरख हाँ, बई ये पुरख है महापुरख, पर आद पुरख सिर्फ तू ही है। इस प्रकार सारियां दा आद ईश्वर तू ही है। ईश्वर तां दुनिया 'च बथेरे बन जाते हैं, पर आद ईश्वर तू ही है, आद देव तू ही है, आद पुरख तू ही है। आदेशुल अलेख है, आदेश जो देशां तो रहत है, ਉਹਦਾ कोई देश नहीं। अलेख है, लेखा तो रहत है, तेरा कोई लेख नहीं, मत्थे ते कोई लेख नहीं, तेरा कोई हिसाब नहीं। हिसाब किताब सब कट दिते ने, दूजियां ने भी कटते ने, अपना भी कोई हिसाब नहीं। हमेशुल अभेख है, आप जी हमेशा ही भेखां तो बिना हो, भेख नहीं तुहाडे विच कोई भी। जमीनुल जमा है, तुसी जमीन दे विच भी हो ते आसमान दे विच भी हो। जिवें महाराज ने बचन किया है, जमीन जमा के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है। अमीकुल ईमा है, अमीक बड़ा डूंगा है अते ईमान वाला है। ईमान है तेरे अंदर अते दूजियां नूं ईमान देण वाला है। करीमुल कमाल है, करीम जो बड़ा कृपालु है, कमाल दा कृपालु है। जे बख्शण ते आ जाए तो बड़े बड़े पापियां नूं बख्श दिंदा है। कृपालता भी बड़ी है, जे दयाल हो जाण तो जा छड्डिया जा, दौड़ जा। माफ भी कर दिंदे ने बड़े बड़े दुश्मनां नूं, पापियां नूं। जे कोई चरनां ते डिग पे गलती माफ मंग ले, मान ले अपनी, तो महाराज कहने जा छड्डिया। बहुत वड्डियां वड्डियां नूं छड्ड दिंदे ने, गुनाहगारां नूं छड्ड दिंदे ने, सज्जन ठग नूं छड्ड दित्ता, जा बख्शिया। देवलूत वर्गियां नूं बख्श लिया महाराज ने। कि जुर्रत जमाल है, अजीब दी तुहाडी जुरत है, जो जलाल तुहाडा इन्ना है, तुहाडे अगे किसी दी जुरत नहीं पैंदी बोलण दी, खंघण दी। तुहाडे मूहरे कोई अखां जाके नहीं देख सकदा। किसी की जुरत की है कि परमात्मा अगे कुछ कर जावे। अजीब किस्म का जो जलाल है तुहाडा, तुहाडे मूहरे सब नीवियां पा के, सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले, जिथे बह के सारे तैनूं याद करते हैं, वो दर केहा जा, वो घर केहा जा। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखां, केते तेरे वावण हारे, केते तेरे राग परिस्यों कईयन, केते तेरे गावण हारे। बड़े तैनूं गाउण वाले ने। वो बेअंत उपमा की कि तेरे दर दे उत्ते बह के, तेरे दरवाजे ते बह के सारे तेरी उपमा करते हैं। जिवें आपां उहदे दर ते बैठे हैं, घर विच बैठे हैं, गुरु घर है, उहदा दर है, उहदे दर ते आपां बह के सारे जाने उहदी उपमा करते हैं, महिमा करते हैं। जिवें आपां बैठे इत्थे महिमा करते हैं, इदां ही हिंदुस्तान च कई थाई महिमा हो रही, कथा हो रही, मंदिरां विच हो रही, मस्जिदां विच नमाज़ां पढ़ रहे हैं, हरेक थां गिरजा घरां विच हो रहे हैं। एतवार पूरे संसार अंदर किन्नी थाई सत्संग हो रहा, हरेक धार्मिक स्थान ते पूरे ब्रह्मंड विच किद्दां हो रहा, सत्तां आकाशां विच, सत्तां पतालां विच किन्नी थाई हो रहा, ते पूरे करोड़ां ब्रह्मंडां खंडां विच किन्नी तेरी उस्तत हो रही है। ये कोई वो नहीं कि सो दर कहा वो सचखंड ही है। इत्थे भी आपां बैठे तो हुण भी आपां सचखंड नाल ही जुड़े हुए हैं। इस वक्त सचखंड दी संगत बैठी है, हुण सचखंड वाली निगाह साडी, ते सचखंड दा मालक साडे विच बैठा। इस करके महाराज कहते ने सारे जने तेरी उपमा करते तेरे दर दे उत्ते बैठ के कि अचलंग प्रकाश है, तेरा प्रकाश अचल है। तेरे प्रकाश नूं कोई घटा वधा नहीं सकता। डिम फुल नहीं हुंदी तेरी बत्ती कदे भी कि हुण वाहिगुरू दा प्रकाश अज घट गया, हुण वध गया। तू तो सदा ही इक्को जिहा रहना। सूरज का प्रकाश घट वध सकदा,
चंद्रमा तारे घट वध सकते ने, तेरा प्रकाश नहीं कदे घट सकता। कि अमित तो सुबास है, कि अमित तो मिणती तो रहत है, तो सुबास खुशबू वाला है। बड़ी खुशबू है तेरे विच। वो खुशबू एक मायावी खुशबू हुंदी है जिहड़ी विषयां नूं पैदा करदी, एक नाम की खुशबू है जिहड़ी दसम द्वार वल लै जांदी, जीव नूं समाधि लग जांदियां ने। तो महाराज की मर्जी, कौतक वरताउंदे नहीं है किते। सच्चे पातशाह अपने समय तो काफ़ी वरता दिंदे सीगे, हुण कहंदे आपे बीज आपे ही खाओ। जे किते माड़ी जी खुशबू आपां देण, अपने जो कोई घर ही नहीं जाऊगा इत्थों। सारे महाराज कहने फिर जाना नहीं, इन्होंने घर नूं नहीं जाना। ये करके इन्हों घरां दा मोह पा के रखिया होया। जदों ब्रह्मा जी ने सनक सनातन संत कुमार हुणी बनाए चारे, ये चारों ही भगती करन चले गए। फिर 8 दिग बनाए जिहड़े वो भी भगती करन चले गए, 16 बनाए वो भी भगती करन चले गए। परमेश्वर नूं जा के कहने महाराज मैं दुनिया की बनावां, जिन्नी दुनिया बनाउणा सब तुहाडी भगती करन चल पैंदे ने। सतगुरु अकाल पुरख कहण लगे, महाराज कहंदे इन्हां नूं माया दा मोह पा, इन्हां नूं घरां दा मोह पा, इन्हां दे शादियां विआह करो, बाल बच्चे दिओ इन्हां नूं, ताकि इन्हां दा मोह पै जावे उहदे विच, फिर ये जाणगे नहीं किते नूं। इस करके आपां नूं मोह पा के रखदे ने भी किते इत्थे ना बैठे रहण, घरां नूं भज लैंदे फटाफट। मेरा घर किते घर होर नहीं जांदा, उत्थे ही हुंदा। बाल बच्चों नूं जाके मिलदे मैं आ गया, पता नहीं किन्ने सालों तो विछड़िया आया सी, मैं सवेर दा गुरुद्वारे गया सी, हुण आया। इउं घर दा मोह पैदा हो जांदा जीव दे अंदर। पर जिन्हां नूं अपना प्यार दे दिंदे ने, ਜਿਹੜੇ समझण कि मेरा होर कोई घर नहीं, मेरा गुरु घर ही है, वो फिर इत्थे ही बैठ जाते समाधियां ला के। तो महाराज कहते तेरा प्रकाश, तेरी खुशबू जिहड़ी है बहुत ज़्यादा है। इतनी खुशबू भाई वीर सिंह जी कहते मैं सचखंड जदों गया एक बारी, शरीर नूं छड्ड के हरमंदर साहब दे आप सचखंड चले गए। कहते उत्थे इन्नी खुशबू है कि बंदे की समाधि खुलती ही नहीं है, इन्नी खुशबू दिंदे महाराज कि अजब स्वरूप है, कि तू आश्चर्य स्वरूप है। ताइयों तैनूं कहने वाह वाहिगुरु, ताइयों तैनूं कहने ते आश्चर्य ही स्वरूप है तेरा। कि अमित तो विभूत है, अमित हुंदी मिणती तो रहत, विभूति है तेरे पास मिणती तो रहत। आ तो कुछ भी नहीं है माया, तेरे नाम का जिहड़ा खजाना वो बहुत ज्यादा वड्डा है, अखुट भंडारा है। कि अमित तो पसा है, कि मिणती तो रहत, पसा हंदा पसारा, मिणती तो रहत तेरा पसारा है, तेरे पसारे का कोई अंत नहीं है। कि आत्म प्रभा है, कि आत्मक प्रकाश रूप है तू, है सारा अपने अंदर भी आत्मा, आत्मा का प्रकाश अपने विच भी है, कि वाहिगुरु भी प्रकाश रूप है। कि अचलंग अनंग है, कि तू अचल है बिल्कुल, तैनू कोई चलाएमान नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, अनंग अंगा तो रहत है। कि अमित तो अभंग है, कि मिणती तो रहत है तू वाहिगुरु, भंग तो रहत है, भंगना नहीं पैंदी तेरी, टुटदा नहीं, नाश नहीं हुंदा, झुकदा नहीं, कुछ भी नहीं हुंदा तैनू, हमेशा एक रस ही रहिंदा है तू। इस करके महाराज कहते जिहड़ा एक रस है वाहिगुरु, उस अकाल पुरख का नाम जपिया करो। भगवती पातशाह आपां नूं फिर भी बख्शिश करनगे जरूर। सो महाराज फरमाउंदे सच्चे पातशाह, मद भार छंद त्वै प्रसाद। 160 पौड़ियां हो गई ने, 161वीं पौड़ी च बख्शिश कर रहे ने। मौन मान प्रणाम, ਜਿਹੜੇ मुनि जन ने वो ਤੁਹਾਨੂੰ मन करके प्रणाम करते हैं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रणाम करते हैं। नन्ने नूं सिहारी मौन ते मन, मन दे नन्ने सिहारी आ गई, मन द्वारा ਜਾਂ मन विच ਜਾਂ मन दे राही ਜਾਂ मन करके मौन मुनि जन मन प्रणाम, वो तुहानू मन करके मत्था टेकते हैं सत्कार भावना दे नाल। गुण गण मुदाम, गुण जिहड़े ने गण समूह जिहड़े गुण ने ये मुदाम ने, तुहाडे विच पक्के ने, पक्का है तू। आर बार अगंज, बार जिहड़े वड्डे ने ज्यादा, आर दुश्मन, इन्हां तो तुसी अगंज हो, दुश्मनां तो कट्टे नहीं जाते। दुश्मन बड़ी बार तुहानू मारन नूं आउंदे ने कि रब नूं मार दईए, रब नूं कौन मार सकदा।
कोई भी नहीं मार सकता। महाराज कहते दुश्मना करके कट्टे नहीं जाते, तुहाडे प्यारे भी नहीं कट्टे जाते। महाराज 10वें पातशाह शाम के वक्त कंघा कर रहे बाहर आनंदपुर साहब के किले तो बाहर उच्चे थां ते बैठ के, तुरकां नाल जंग चल रहा है, चारे पासे फौजां ने। महाराज दे बड़े गोले मारन का यतन किया पर कोई गोला लग्या नहीं। सतगुरु महाराज कहते ने, कहते भाई अकाल पुरख की कृपा होनी चाहिए, फिर कोई चीज आके जीव नूं लगदी नहीं। 17 अनेक चलावत कहावत उता नेक ना लागन पावे। हर नर प्रभंज। सो जे तुसी देखो कि हरनाक्ष वर्गे दुष्ट पैदा हो गए, इन्हां नूं मारना है, तां फिर तुसी नरसिंह दा रूप धारण करके प्रभंज चंगी तां भन्न के रख दिता उहनूं। नरसिंह रूप धारिया, हर नर। हर दा मतलब हुंदा सिंह, इस करके नर। नरसिंह जिहड़ा रूप धारण किया वो तुसी प्रभंज चंगी तरह भन्नण वाले हो। तुसी नरसिंह रूप धारण करके दुष्टां नूं आन गान प्रणाम, अनगिणत ही लोग तुहानूं प्रणाम करते हैं। अनगन मौन मन सलाम, पहला सी मौन मन प्रणाम, हुण मौन मन सलाम। ਜਿਹੜੇ मुनि जाने वो तुहानूं मन करके सलाम करते हैं, झुकते हैं तुहाडे अगे। हर नर अखंड, तुहाडा नरसिंह रूप जिहड़ा वो अखंड है, कट्टण तो रहत है, उहनूं कोई कट नहीं सकता। बर नर अमंड, तुसी सारिया नरां विचों बर श्रेष्ठ हो। अमंड शोभा तो रहत हो, मतलब कि शोभा इन्नी ज्यादा है कि तुहाडी शोभा कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा शोभा वाले हो। अनभव अनास, अनभव सुत ही प्रकाश हो, अनास नास तो रहत हो। मौन मन प्रकाश, ये तीजी बार आया मौन मन प्रकाश। मुनि जना दे मन विच प्रकाश कर दिंदे हो। गुण जिहड़े गुरमुख प्यारे ने, नाम जपण वाले ने, भगत जन ने, संत जन ने, उन्हां दे मनां अंदर तुसीं प्रकाश करदे हो। गुण गण प्रणाम, समूह गुणा वाले, हे अकाल पुरख मेरी तुहानूं प्रणाम है। गुण गण बहुते गुणा वाले जिहड़े वो भी तुहानूं प्रणाम करते हैं। जल थल मुदाम, जलां विच थलां विच मुदाम पूरे मुकीम हो, पक्के हो तुसी। आन छिज अंग, तुहाडे अंग जिहड़े ने वो छिजण तो रहत ने, नाश नहीं हुंदे, उहनां नूं कोई नाश नहीं कर सकदा तुहाडे अंगां नूं। आसन अभंग, तुहाडा जिहड़ा आसन है, तख्त है, सचखंड है, इहनूं कोई नाश नहीं कर सकदा, अभंग है, इहनूं कोई कट नहीं सकदा। उपमा अपार, जी तुहाडी उपमा है पारावार तो रहत है, तुहाडी कोई उपमा कर नहीं सकता। जिन्ना क मूँह दिता उन्ना की बोल सकता। गात मित उदार, तुहाडी जिहड़ी गात है, मर्यादा है, तुहाडी जिहड़ी अवस्था है, मित मर्यादा है, ये तो तुसी बाहर हो ना। तो तुसी आपां कहिए मर्यादा विच, मर्यादा की लोड़ तो सानू पैंदी है, अवस्था की लोड़ तो आपां कह सकते मेरी फलानी अवस्था है। जे कोई कहे रब की की अवस्था है, रब की तो कोई अवस्था ही नहीं, वो तो अवस्थावां का मालक है, उदार खुले दिल वाला है। जल थल अमंड, जलां विच भी हो, थलां विच भी हो, अमंड बहुत ज्यादा शोभा वाले हो। दिस विस अभंड, सा चारे दिशावां ते विस, इन्हां दे जिहड़े चार छोटे उपकोण ने, जिहड़े अगन कोण अवैव कोण विच भी अभंड, भंडण तो रहत हो, तुहानूं कोई भंडदा नहीं। जल थल महंत, जलां विच थलां विच तुसीं महंत रूप हो, सारिਆਂ नालों वड्डे हो के बैठे हो। दिस विस बेअंत, दिशावां दे विच ते उप दिशावां दे विच भी बेअंत हो, बेअंत हो। अनभव अनास, अनभव अपने आप तो ही प्रकाशमान हो, नाश तो रहत हो।
ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਧੁਰਾਸ। ਧ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧ੍ਰਿਤ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੁਰਾਸ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੁਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੁਰਾ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਘਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਖਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਰ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਜੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਨ ਛਿਜ ਗਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਅਨ ਛਿਜ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਜਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਜਿਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਮੁਤਾਜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੁਤਾਜਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਨ ਝੰਜ ਗਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਝੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨ ਰੰਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੌਰਾ। ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨ ਟੁੱਟ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨ ਠੱਟ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨ ਠੱਟ, ਠੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਪ ਸਕਦਾ। ਆਡੀਠ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਡੀਠ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਢੀਠ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਣ ਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੰਤ ਹੋ, ਅਨੰਤ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਬ੍ਰਣ, ਬ੍ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਦਮਨ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ
बोल मना छंद। सतगुरु महाराज कहते हरि दा नाम बोल मेरे मना, हर बोल मना छंद। त्वै प्रसाद तेरी किरपा नाल हर बोल मना छंद उच्चारण करन लगे। करुणालय है करुणा, एक हुंदा करना, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। करना हुंदा प्रपंच संसार नूं कहंदे ने करना। ये रारे नूं औंकड़ नाल है। करुणा आलिया, आलिया मतलब घर। ये गल पक्की पका लो, जिथे भी कृपाल आ गया, दयाल आ गए, जिथे भी आल्य मंगर आ गया, आल्य आल, उथे ही घर है। सो महाराज कहते करुणालय है। करुणा किरपा, किरपा दा घर है तू। इस तरह ये बोलन दे ढंग तरीके ने समझ। करुणालय है, किरपा दा घर है। आर घालिया है, आर जेड़े दुश्मन ने इन्हां नूं घालिया तो भाव मारन वाला। कोई भी साडा दुश्मन है, चाहे वह काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, शरीरक दुश्मन ने, किसी तरह के भी नहीं, सारे प्रकार के दुश्मनों नूं मारन वाला, खत्म करने वाला है। खाल खंडन है, खाल जिहड़े मूर्ख लोग ने इन्हां नूं खंडन टुकड़े टुकड़े करने वाला, मूर्खां दे टोटे कर दिंदा, मूर्खां नूं रहण नहीं दिंदा। मह मंडन है, मह धरती, धन पूर्ण सब मही। श्री मुख वाक विच श्रवण कीता। मह मैं तो बाब धरती तो, मंडन मतलब हुंदा शिंगारना। धरती दा शिंगारन वाला है तू। धरती नूं किस ढंग नाल बनाया, इस करके साडी नमस्कार है। बुद्धि रूपी धरती नूं भी तुसीं शिंगारदे हो, प्रतੱਖ धरती नूं भी शिंगारदे हो। शरीर रूपी धरती नूं भी तुसीं किवें शिंगारिया, किन्ने सोहणे अंग प्रतंग लाए हुए ने जीव दे ताईं। मुख दिता, अखां दित्तियां, नक लाया। सो जीव नूं जिन्ना शिंगार खूबसूरती दिती है, तुसीं भी दिती है। जगत ईश्वर है, सारे जगत का ईश्वर है, मालक है। ते स्वर, स्वर सस्से दे पैर विच वाहवा है। सो इस करके जे सस्सा वाहवा पूरा रारा होवे, सवर, फिर सवर बनता है। ये हैगा स्वर, जगतेश्वर। जगत का ईश्वर रूप है तू, है अकाल पुरख वाहिगुरू। परमेश्वर है, परम ईश्वर रूप है। पंज ईश्वर मन्ने ने, वो पंजा ईश्वरां तो वड्डा ईश्वर तू है। उन्हां नूं सत्ता देण वाला तू है। काल कारण है, कल जिहड़ी कला कलेश है, लड़ाई है जिहड़ी, इहदा कारण तू है। लड़ाई पैदा कर दिंदा। नमो बाद बादे, पहला भी आ चुकिया। बाद झगड़ियां विच झगड़ा रूप होके तू झगड़ा करवा दिंदा। कल कारण है, कला दा कारण भी तू पैदा कर दिंदा। लड़ाई दा कारण, लड़ाई जदों हुंदी है तो छोटी जी गल तो शुरू हो जाती। कई बारी बड़े बड़े राजे महाराजे लड़ाई करते हैं, उन्होंने खास गल नहीं हुंदी। फिर ਜਿਹੜੀਆਂ लड़ाइयां देशों ਦੀਆਂ माड़ी मोटी गल पिछे मग जांदियां लड़ाइयां, घरेलू लड़ाइयां भी छोटी जी गल पिछे, छोटी जी गल का बहुत वड्डा पलंदा बन जाता। ये ਜਿਹੜੇ कल दे सारे कल दे कारण नूं पैदा तुसीं कर दिंदे हो। शाहजहां ने
महाराज छेवें पातशाह का घोड़ा जो सी वो जबरदस्ती खो लिया, इथों कारण बन गया लड़ाई का। रावण नूं मारना सी तो सीता नूं चुकण का कारण बनाता, हरनाक्ष नूं मारन लई प्रहलाद नूं कारण बनाया। सो इस तरह सतगुरु महाराज कहने जदों किते कला का कारण बनाना हुंदा उत्थे कारण तुसीं आप ही बना दिंदे हो, फिर लड़ाइयां हो जांदियां ने। जदों शांति करनी हुंदी है उदों भी तुसीं नमो शांत रूपे होके उहदी शांति भी कर दिंदे हो। सर्ब उबारण है, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बचाउण वाला भी तू आप है। लड़ाई भी लाउंदा फिर विच बचाउंदा भी है। जिन्हां दी नहीं आई उन्हां नूं बचाउण दा काम भी तू ही करदा, जिन्हां दा समां आ गया उन्हां चले जाना। सारे पासिਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਣ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਧਰਣ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਨ ਧਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਧਣੀ ਅੱਖਰ, ਧਣੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਆਪ। ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਆਪ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ, जगत नूं जन्म दिंदे हो आप। सोचण नूं नहीं समा लाया वाहिगुरू ने भी मैं इस तरह सृष्टि बनाउणी है, मैं इस तरह बनाउणी है। ये सृष्टि तो अपने आप ही बन गई। एक छिंद च परमेश्वर ने सृष्टि नूं बना दिता। मन मान्या है, मन दे विच माननीय है, हरेक दे मन दे विच मनन योग है। सब कोई तैनूं मनदा है। जग जान्या है, सारे जगत नूं जानदा है तू। सारा जगत तैनूं जानदा है, सारे जगत नूं तू जानदा है। सर्बं भर है, सारियां दे पेट नूं भरन वाला है। जिथे भी भार आ गया उत्थे ही भर दिंदे हो, कोई खाली होवे सही। रीते भरे भरे सखनावै, यह तां को व्यवहारे। सतगुरु महाराज कहने हुण जिवें भर है, जिहड़े खाली बंदे ने गुणां तो खाली ने उन्हां नूं गुण भर दिंदे हो। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सर्बं कर है, सारियां नूं करन वाला है। पैदा करदा है पालना, पैदा भी तुसीं करदे हो। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। सर्बं कर है, सर्ब पास्या है, सारियां दे पास हो, हरेक दे कोल हो, हमेशा साडे कोल हो। पर नज़र नहीं आउंदे, दिखते नहीं हो, कोले हो साडे हमेशा। सर्ब नास्या है, सारियां दा नाश तुसीं करन वाले हो। सृष्टि का जदों मुकाउणा करोगे कोई तरस नहीं आउंदा। उदों आपां कहिए तरस आउंदा, बनाउंदा भी आप ही है ते नाश भी आप करदा। पर यह है कि मारन का तरीका बड़ा वधिया। जदों सृष्टि नूं नाश करदा है अख झमकण वाले टाइम लग जाता आपां नूं। अख झमकण तो पहला ही नाश कर दिंदा, एकदम ही मुका ही दिंदा। करुणाकर है, पहला आया सी करुणालय है, हुण आया है करुणा आकर है। अडाणे दे कन्ने चों आड़ा निकलिया आउंदा आकर। आकर मैंने हुंदा खाणी, खजाना। खाणी जिवें कोलियां दी खाण, हीरियां दी खाण,
लोहे की खान, अबरक की खान, ये सारियां खाना ने। इस प्रकार तुसी किरपा की खान हो, तुहाडे विचों किरपा जन्म लैंदी है। बड़े दयालु कृपालु सुभाव वाले हो। बिस्वंग पर है, ये पैर दे विच वाहवा उत्ते टिप्पी लगन करके बिस्वंग पर है। जिन्ना विश्व है सारा संसार है, ये सारे संसार के जिन्ने जीव ने इन्हां दे पेट नूं तुसीं भरन वाले हो। सर्वेश्वर है, सारियां दा ईश्वर रूप है, वड्डा है। स्वर, ये स्वर अखर कई जगह आउंदा है। सर्वेश्वर, जगतेश्वर, पिछे भी आया परमेश्वर। बोलना ही पहला औखा लगता है, पहला बोलना औखा बाद विच सौखा हो जाता है। जगतेश्वर है, सारे जगत का ईश्वर रूप है, मालक है। ब्रह्मंडस है, ब्रह्मंडा का मालक है। जिन्हें ब्रह्मंड ने, इन्ना वड्डा अमीर कौन हो सकता? चंद्रमा तारे जिन्हें ने, इन्हों का मालक कौन हो सकता? सारियां का मालक है। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। खल खंडस है, खल जिहड़े मूर्ख लोक ने, मूर्ख लोकां दे टुकड़े टुकड़े करन वाला है। पर ते पर है, कहते परे तो परे हैं, परे तो परे हैं। गिनना शुरू करिए, छोटे तो लैके बड़े तक, 84 तो लैके दैंत देवते सब, तिन्ने देवते आ जाते हैं। फिर माया आ जाती, माया तो भी परे। माया ने भी तेरी समझ नहीं लगती। माया भी तेरी आज्ञाकारी कीनी माया, ये भी तेरी आज्ञाकारी होकर कार्य करती है। करुणा कर है, फिर कहते ने किरपा की खानी है। हे किरपा की खानी, साडे उत्ते किरपा कर। बार बार तां कहते ने क्योंकि प्यार है। जिथे प्यार हुंदा है उथे सतगुरु महाराज प्रेम विच आके जिवें तू ही तू ही तू ही तू ही करदे ही रहे, करदे ही रहे। इसे तरह सतगुरु महाराज कहने हे किरपा दे खानी, हे किरपा दे घर, हे किरपा वाले सच्चे पातशाह। अजप्पा जप है, अजप्पा जिहदा कोई जाप ना करदा होवे उहदा जाप करवा दिंदे हो। पर तू अजप्पा जप है, तू किसी का जाप नहीं करता, तू जाप तो रहत है। अथप्पा थप है, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल अथप्पा ने, जिन्होंने कोई थापदा नहीं, जिन्होंने कोई पुछदा नहीं, जिन्होंने कोई बिठाउंदा नहीं, ਜਿਹੜੇ रुलदे फिरदे ने उन्होंने थापण वाले तुसीं हो। ਜਿਹੜੇ कहण भी हुण सानू तां किसी ने पुछना ही नहीं गा, सानू किसी ने बिठाउणा ही नहीं, हुण उन्होंने तुसीं बिठा दिंदे हो थां ते। कोई गद्दी दे दिंदे हो, कोई थां दे दिंदे हो, और रुलदियां फिरदियां ने उन्होंने भी संभाल लेंदे हो। फिर ਜਿਹੜੇ पदवियां थापण वाले तुसीं आप ही थाप जा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी आदि ਜਿਹੜੇ बनाए ने, ये तुसीं बनाए सारे। इन्हां ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ थापण वाले भी तुसीं हो। अकृता कृत है, जो अकाल पुरख वाहिगुरु तेरी जिहड़ी किरत है ना, वो किरत तो अकिरत है। तू मतलब कि किरत नूं कीता नहीं है। ये नहीं कि वो आप बैठा किरत करना। जिवें कई कहणगे रब ने फलानी चीज़ तो बड़े प्यार नाल बनाई होनी है, ऐ गल्लां करदे ने जिवें उहदे कोल बैठे हुंदे। परमात्मा अकिरत है, वो करदा नहीं कुछ, सिर्फ इशारे विच ही सब कुछ बना दिंदा। सकिंट तो पहले ही बनाउंदा। महाराज कहने सृष्टि बनाउण वेले वो एक सकिंट तो बहुत ज़्यादा लगदा। सकिंट दे भी 60 हिस्से कर लईए जे उदों पहला बना दिंदा। अमृता मृत है, कहते जिहड़ा अमृत है उस अमृत का भी अमृत रूप तू है। वास्तव दे विच हरेक शक्ति विच शक्ति उहदी है। आपां कहने अमृत विच शक्ति है कि अमृत पी के बंदा अमर हो जाता। पर महाराज कहने वास्तव विच शक्ति अमृत विच भी नहीं है। अमृत विच भी जिहड़ी शक्ति है वह भी तेरी हुई है।
शक्ति हरेक चीज की दिखावे मात्र है, वास्तव विच हरेक चीज की शक्ति तेरी अपनी ही हुंदी है। अमृता मृत है, कहने जेड़े बिल्कुल ही कह देन अमृता कि मैं मरदा ही नहीं, मैनू कोई मार ही नहीं सकता, ओदी भी मृत्यु है। तू हरनाक्ष वर्गियां दी, रावण वर्गियां दी, हरेक दी मृत्यु तुसीं बन जांदे हो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 45 ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਚਿਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ऐसे इंतजाम कर ले उसने, कहना मैनू कोई मार ही नहीं सकता, पर फिर भी तक्षक नाग के रूप में हो के मक्खी बन के ਉਹਦੇ मत्थे च डंग मारिया। तो महाराज कहने अमृता मृत है कि जेड़ा बंदा कहे कि मैं मरदा नहीं, मैं अमृत हाँ, मैं नहीं मरदा, ਉਹਦੀ मृत्यु तुसीं बन जाते हो, बहाना बना दिंदे हो कि मैनू कोई मार नहीं सकता। मक्खी रूप होके जाके मारिया, हरनाक्ष मारिया। रावण कहना मैं मार ही नहीं सकता, जो मर्जी कोई कर ले, पर फिर भी उन्होंने मारिया। मौत दी भी जो मौत है तू करुणाकृत है। सो सारियां जिन्नियां आकृतियां बनियां हुई ने, आकार बने हुए ने, ये सारे तेरे ही बनाए हुए ने। अकृता कृत है, जिन्नियां आकृति हुंदी सुंदरता, संसार दे अंदर जिन्नियां आकृतियां ने, जिन्नी सुंदरता है, ये सारी तेरी ही बनाई हुई है। किसी विच सुंदरता नूं आपां भर नहीं सकते। जे मैं कहा मैं सुंदर बना दियां, कुछ नहीं बना सकता, कोई भी सुंदर कुछ भी नहीं बना सकता। वाहिगुरू दी मेहर होवे तां सुंदरता बनदी है। चित्रकार भी पहलां तैनूं ध्याउंदे ने, कविता वाला भी अपनी कविता तो पहला तैनूं ध्याउंदा। हरेक बंदा अपने काम तो पहला अपने अपने धर्म दे विच परमात्मा नूं ध्याउंदा कि परमात्मा मैनूं समत दे, मैनूं बुद्धि दे, मेरी कलम विच जान पा, मेरे बुरश विच जान पा। सारियां सुंदरता दा बनाउण हारा तूं आप है। धरणी त्रित है, धरती नूं त्रित धीरज देण वाला है। ये जिहड़ी धरती है ना, तो आपां कहने धरती अंदर बड़ा धीरज है। सतगुरु जी ने प्रमाण दिता धरती दा, ज्यों बसदा कोई खोदा कोई चंदन लेप। इन्ना धीरज है धरती च। कोई पट्टी जांदा, कोई गंदगी सुट्टी जांदा, कोई कुछ करी जांदा। धरती विच मां वर्गा धीरजता, माता धरत महत। पर यह कदे सोचा महाराज कहने कि धरती नूं धीरज कौन दिंदा? धरती नूं धीरज भी वाहिगुरू ही दिंदा है। जदों धरती किते डोलण लग जाती है तां धरती नूं डोलदी होई नूं सहारा मिलदा है। जदों आपां कहने सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज के धरती नूं धीरज तुसीं दिंदे हो, इस करके अकाल पुरख वड्डे ने धीरज बंदे नूं भी दिंदे ने। जत पहाड़ा धीरज सुनियार। इस करके महाराज को धीरज का गुण भी आपां ने मंगना। धरती नूं महाराज इन्ना धीरज दिता तुसीं, फिर तुहाडे च कितना धीरज है। धरती नूं रोज लोग पटदे ने, पता नहीं की कुछ करदे ने नाल। धरती इन्हां नूं कुछ नहीं कहदी। धरती च इन्ना धीरज है, फिर तुहाडे च कितना धीरज होवेगा। तुसीं धीरज दे मालक हो। अमतेश्वर है। इस करके आप मिनती तो रहत बल वाले हो।
कोई अंत नहीं तुहाडे बल दा। परमेश्वर है, परम ईश्वर रूप हो आप जी। अकृता कृत है, सारियां किरतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ आकार ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ? ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਅਮ੍ਰਿਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। बड़े बड़े जोगी लोग काम क्रोध नूं काबू करन लई अपने टिल ला हटे, जोर ला हटे, ये ना काबू आया किसी को। जदों अक के कहते ने, बेनती करते ने अकाल पुरख के चरणों च के काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ाओ, ये भीतर ते इनको डर हो आपन निकट बुलाओ। महाराज ये तो तुसीं बचाओ, ये साडे ते मारने दे है नहीं। ये तो जिवें बड़े बड़े दुष्टां नूं तुसीं मारिया, हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। असीं तां महाराज हैगे प्रहलाद वर्गे। ये जिहड़े काम क्रोध ने हरणाक्ष वर्गे ने, ये तो सातों नहीं मरदे। ये तो कहते असीं अमृतू हैं, सानूं कोई मार नहीं सकता। तो महाराज अगे शब्द विच कहने हर जन मंगल गावो। महाराज कहने हरि दे प्यारिओ तुसीं तां वाहिगुरू वाहिगुरू करो, मूल मंत्र पढ़ो, बाणी पढ़ो, बाकी दा काम मेरा। ये सारे मैं आपे काबू कर लेने। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। महाराज इन्हां तो बचाओ मेरी जान नूं। ये अमृता मृत इसे करके लिखिया कि मौत दी मौत है, विषयां दी भी मौत है, परेशानियां दी भी मौत है, चिंता दी भी मौत है, बड़ी चीज़ां दी मौत है। तो समाप्त ही कर दिंदे हो। अजबा कृत है, हैरानीजनक किरत है तेरी, अजब कृत है, कोई जान नहीं सकिया तेरी किरत नूं। इदां किदां बना लैंदे तुसीं? किसे तो नहीं बनता जिवें तुसीं बनाउंदे हो। अजब किरती शरीर की बनाती है, ये इन्नियां नाड़ां रख दित्तियां ने, इस तरह का चलदा बनाता इहनूं शरीर नूं। ये किस तरह बना लैंदे हो? अजब प्रकार की किरती तुहाडी, वाह। इसे करके कहने वाह। अमृता अमृत है। महाराज कहने जिहड़ी मौत है, कालन को काल महाकालन को काल है। मौत दी भी मौत एक दिन तू ही बनता है। सारी दुनिया नूं मौत मारदी है, पर जदों मौत की वारी आउंदी है तो उहनूं कौन मार सकदा? तुसीं मार सकदे हो। नार नायक है, नर जिन्ने ने सृष्टि दे जिन्ने जीव ने, इन्हां दे नायक हो, मालक हो। सो इस करके मालक तो तुसीं सारिआं दे ही हो, पर फिर भी इत्थे एक अंश दे के सारिआं लई इशारा करता है। जदों नर आ गया तो आपे आ गए बाकी सारे। जिवें आउंदा अखर सुर नर मुन जन, जिथे ये एक अखर आ जाता उत्थे भी सारे ही आ जाते हैं। सुर नर मुन जना दे नायक हो। खल घायक है। खल जिहड़े मूर्ख ने, मूर्ख रावण क्या ले गया? ओहे जे खलां नूं घायक मारन वाले भी तुसीं हो। जिन्ने मर्जी मूर्ख आए तुहाडे सामने, लला बेग वर्गे आए, काले खां वर्गे आए, किन्ने ही आए चल के। हरेक जंग विच कोई ना कोई मूर्ख आके सामने खड़ जांदा, मैं रब नाल लड़ना, मैं टक्कर लैनी है। सो महाराज सच्चे पातशाह ने हरेक मूर्ख नूं झाड़ के रख दिता। विस्वंपर है, सारे जीवां दे संसार दे पेट नूं भरन वाले, रोजी देण वाले तुसीं, हरेक नूं भरन वाले। सो जिवें पहलां भी आई जांदा बार बार, विस्वंपर है, पेट भरना हरेक दा। कल्ला पेट ही नहीं भरदे तुसीं, मतलब कि विस्वंपर सारे विश्व नूं संतोख देण वाले हो।
ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ, ਕੁਛ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੰਡ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁੜ ਬੜਾ ਕੌੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਕਦੇ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬੇਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੀ, ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਦਿਆਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਰੱਬਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਿਰਪ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਨਿਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ। ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਕ ਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਪਾਇਕ, ਪਾਇਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਇਕ ਮਤਲਬ ਦਾਸ। ਭਾਵ ਪੰਜਨ ਹੈ,